Good morning, every students. Today discuss the hypothesis of a stomata open and close. Measurement of transpiration. One question: the measurement of transpiration Genang's potometers. Scientist name Genang's. The measurement name potometer. The Genang's potometer. Mechanism of stomata movement. Mechanism of a stomata movement. The stomata movement, several hypotheses explained. Only three hypotheses is the mainmost hypothesis. Only explain stomata movement. The first hypothesis, starch sugar hypothesis. Starch sugar hypothesis. This thesis forwarded by J.D. Sayre in 1923. Scientist named J.D. Sayre. In this hypothesis, the starch converted glucose 1-phosphate. The starch converted glucose 1-phosphate. Presence of enzyme phosphorylase. Phosphorylase enzyme. Glucose 1-phosphate soluble in water. The DPD increase. The DPD increase. The osmotic concentration increase. The water movement helper cell to guard cell या subsidiary cell to guard cell. The stomata open. Second hypothesis, Stewart's hypothesis. This thesis is forwarded by proposed by Stewart's scientist. In this hypothesis, the glucose 1-phosphate convert into glucose 6-phosphate. But glucose 6-phosphate is more soluble in water. The osmotic concentration is increased. The stomata open. The guard cell turgid. Third main hypothesis, active potassium ion transport hypothesis. The potassium ion. The stomata open and close depend on potassium ion. This hypothesis first time explained by Imamura and Fuselier, and next explained by modified by Leavitt scientist in 1974. This hypothesis is part 2 divided. First type, stomata open condition. During daytime, malic acid make in mesophyll cells. The sunlight enter in mesophills. Malic acid dissociated by malate and hydrogen ion. Malic acid dissociation, malic acid, malate and hydrogen ion. Hydrogen ion out of a guard cell to subsidiary cell, and potassium ion. Influx of potassium into guard cell and efflux of hydrogen from guard cell. तो ये कह रहा है कि मेसोफिल्स में जो गार्ड सेल है उसमें तो पोटेशियम आयन इंटर कर जाता है और हाइड्रोजन आयन सबसिडियरी सेल में चला जाता है. जैसे ही पोटेशियम आयन गार्ड सेल में आता है तो गार्ड सेल में पहले से प्रेजेंट कौन है, मेलेट. तो मेलेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ ए पोटेशियम मेलेट. जैसे ही पोटेशियम मेलेट बनता है तो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है गार्ड सेल की, और जैसे इंक्रीज होगी तो डीपीडी भी इंक्रीज हो जाती है और वाटर के प्रति आकर्षित हो जाती है. और जैसे ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस वाटर सबसिडियरी सेल से गार्ड सेल में आएगा तो गार्ड सेल इज टर्जिड और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. तो ये प्रोसेस थी सबसे मोस्ट. ड्यूरिंग डे टाइम मैलिक एसिड डिसोसिएशन, मेलेट एंड हाइड्रोजन ion out and potassium ion in. The formation of potassium malate, increase osmotic concentration. O का पूरा है osmotic concentration of guard cell. The guard cell turgid, stomata open. And night time, stomata close process. Night time. During night time photosynthesis stop. Night में क्या हो जाता है, photosynthesis stop हो जाता है और CO2 इंक्रीज हो जाती है. जैसे CO2 इंक्रीज होगा तो स्पेशल एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन ABA, एब्सिसिक एसिड एक्टिव. इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम गार्ड सेल.
जैसे ये एसिड एक्टिव होगा तो पोटेशियम आयन को आउट कर दिया जाएगा और हाइड्रोजन आयन इन हो जाएंगे। डिक्रीज, पोटेशियम अंदर आया तब तो इंक्रीज हो रही थी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जैसे ही बाहर जाएगा तो डिक्रीज इन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स, गार्ड सेल एंडोस्मोसिस, वाटर वापस बाहर चला जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड पिचक जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम ऑफ व्यू, फैक्टर्स इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, टू मेन फैक्टर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल। द एक्सटर्नल light increase, the transpiration increase, तो light directly proportional to transpiration। wind directly proportional to transpiration। हवाएं तेज चलेंगी तो लीव्स के ऊपर का वाटर क्या होगा, हवा के साथ उड़ जाएगा, जिससे दोबारा पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। इस प्रकार पत्ती से ज्यादा पानी निकलेगा। तो विंड तेज, हवाएं तेज चलेंगी तो ट्रांसपायरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। सोइल वाटर जितना ज्यादा होगा ट्रांसपीरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन भी प्लांट ज्यादा कर सकता। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगा। तो ये चारों ही क्या हैं, समानुपाती हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लाइट, विंड, वाटर एंड इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर अगर लीफ पर स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। डेजर्ट्स प्लांट्स में स्टोमेटा क्या होते हैं, अंदर धसे होते हैं, ऐसे स्टोमेटा होता है सनकिन्स स्टोमेटा। रूट शूट रेशियो, रूट्स जितनी ज्यादा लंबी होंगी तो पत्तियों तक पानी उतना ज्यादा पहुंचाया जाएगा और एक दूसरे के समानुपाती। लीफ ओरिएंटेशन, अगर लीफ सनलाइट के क्या होंगी, डायरेक्ट होंगी तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा, अगर पैरेलल होंगी तो ट्रांसपीरेशन कम। अगर पत्ती ऐसे लगी होगी तो सनलाइट ऐसे ज्यादा गिरेगी तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा, अगर ऐसे लगी होगी तो सनलाइट पास से निकल जाएगी तो ट्रांसपीरेशन कम। सिग्निफिकेंस ऑफ ए ट्रांसपीरेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ए बेनिफिशियल, द बैलेंस ऑफ ए लीफ टेम्परेचर। फर्स्ट द बेनिफिशियल, तो बैलेंस ऑफ लीफ टेम्परेचर, एंड सेकेंड द एक्स्ट्रा वाटर वेपोराइज्ड या वेपर वाटर फॉर्म में चला जाए, या एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। हार्मफुल, अगर ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाए और वाटर की जमीन में वाटर कम है या सॉइल वाटर की कमी है तो इससे प्लांट में क्या आ जाती है, परमानेंट विल्टिंग आ जाती है, मुरझा जाएंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो पूरा जो प्लांट ही है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसे बोलते हैं हार्मफुल, परमानेंट विल्टिंग बोलते हैं। गुटेशन, अगर वाटर वेपर फॉर्म में निकले तब तो बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के किनारे से निकले, अगर ये पत्ती के जो मार्जिन है उनसे निकले, ये है वेन। अगर यहां से नाइट के समय, सुबह उठते समय या नाइट या अर्ली मॉर्निंग, तो यहां से वाटर ड्रॉपलेट के रूप में निकले तब बोलते हैं गुटेशन। अगर वाटर भाप के रूप में निकले तब बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ए गुटेशन। और यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं हाइडेथॉड्स। और इनके जो बार वाले जो छिद्र जहाँ से वाटर निकलेगा उनको बोलते हैं वाटर पोर। इन हाइडेथॉड्स के नीचे स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं एपिथेम टिश्यू। एपिथेम टिश्यू अंदर जो जाइलम की सेल्स होती है, कौन सी, जाइलम वेसल्स, उसके जाइलम वेसल्स किस में आके खुलती है, एपिथेम टिश्यू में आके खुलती है। जैसे ही सॉइल में वाटर ज्यादा है और ट्रांसपीरेशन कम हो रहा है तो रूट प्रेशर के द्वारा वाटर कहां पर आ जाता है, जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स के थ्रू किस में आ जाता है, एपिथेम टिश्यू, और एपिथेम से किस में आ जाता है, हाइडेथॉड्स में, और वाटर वेपोर जो वाटर पोर है उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्यूटेशन।
लास्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का अर्थ होता है जैसे हम कट लगाते हैं तो थोड़ा सा जो लिक्विड निकलता है प्लांट के स्टेम में से, लीव्स में से, उसी को बोलते हैं ब्लीडिंग। कहाँ से निकलता है? जाइलम वेसल्स। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कोटेशन में वो ये पूछेगा कौन सा प्रेशर वर्किंग करता है इसमें? रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है, क्योंकि रूट भी अर्थ की सेंटर की ओर, प्रेशर भी किधर लग रहा है? अर्थ के सेंटर की ओर, इसीलिए रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है और जो ट्रांसपायरेशन फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा लेसन। आगे के क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। गुड बाय।